ابراہیم علیہ السلام اب آگ میں جانے والے ہیں، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، بٹھایا گیا تھا، منجنیق کے اندر اس کو زمین نے پکڑ لیا تھا اور زمین اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام جس منجنیق میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی جو کوٹری نما چیز تھی وہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور وہ اس کو زمین نے پکڑ لیا تھا، تب ابلیس نے کہا تھا 40 مرد اور 40 عورتیں بالکل برہنہ ہو کر کے آئیں اور آ کر کے یہاں پر زنا کریں۔ معاذ اللہ جب وہاں پر زنا کا مشورہ دیا، نمرود نے ایسا ہی حکم دے دیا، 40 مرد اور 40 عورتیں آئیں اور آ کر کے اس زمین پر زنا کیا۔ وہ زمین کا حصہ خاکستر ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پلڑے کو زمین نے چھوڑ دیا، کیونکہ جہاں زنا ہوتا ہے وہ زمین کا حصہ جلا دیا جاتا ہے، جہاں زنا ہوتا ہے زمین کا حصہ وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پلے کو جب منجنیق کے پلے کو جب آج زمین نے چھوڑ دیا، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس سے مجھے بتا دو، میں اس کی بارگاہ میں جا کر کے بیان کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرا حال جانتا ہے، میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے جبرائیل تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہاں پہنچ کر کے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، میرا امام پکار کے کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو میرے سامنے بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جب میرے آقا معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، جب میرے آقا معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، پہلے آسمان پہ ساتھ ہیں، دوسرے آسمان پہ ساتھ ہیں، تیسرے آسمان پہ ساتھ ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری یہی منزل ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر بال کے پر کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو رب کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرا پہ میرے آقا جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل یاد کرو وہ بات جو تم نے میرے دادا ابراہیم سے کہی تھی کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے جبرائیل سنو، آج تمہاری کوئی حاجت ہو تو میرے سامنے بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں آقا میری ایک تمنا ہے، ہاں آقا میری ایک آرزو ہے، ہاں آقا میری ایک خواہش ہے۔ کہا کیا ہے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا میری تمنا یہ ہے کہ جب کل پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ حضرات تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جب میرے آقا بڑھ رہے تھے تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل تم نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل اس سے آگے میں جا رہا ہوں، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی مدینے والے مصطفیٰ کا مرتبہ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی۔
नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, कुलना यनारु कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार हो गई। उसके अंदर जन्नती तख्त बिछा दिया गया, फुलवाड़ियां लग गईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक मसनद आई, उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक शबी आया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हवा कर रहा था, पंखा जल रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर बड़े आराम से हैं। हजरत गिरामी हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम आग के अंदर हैं। नमरूद की बेटी जिसका नाम रगफा था, उसने सोचा कि लाओ देखूं। जब छत पर चढ़ी उसने सोचा लाओ देखूं इब्राहीम को आग ने जला दिया है कि नहीं जलाया है। जब ऊपर से देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े आराम से आग के अंदर बैठे हुए हैं और एक आपका शबी आपकी हवा झल रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से फरिश्तों को भेज दिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत करने के लिए। उस लड़की ने कहा, रगफा ने कहा, ऐ इब्राहीम आपको आग ने नहीं जलाया? आपने फरमाया नहीं। कहा किसने तुमको बचाया? कहा मेरे उस रब ने मुझे बचाया है जिसने मुझे पैदा किया है, तुझे पैदा किया है और नमरूद को पैदा किया है। उस लड़की ने कहा क्या मैं भी तुम्हारे पास आ सकती हूँ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ आ सकती है, लेकिन तुझे उससे पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा क्या कलमा है? आपने फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ये कहे और आकर के आग में कूद पड़। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो उस लड़की ने ये कलमा पढ़ा और आग के अंदर छलांग लगा दी। आग के अंदर पहुंच गई, उसको भी आग ने नहीं जलाया। हजरत गिरामी हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम है कि आग के अंदर तकरीबन 7 दिन या 8 दिन तक आप रहे। उसके बाद आप आग से बाहर तशरीफ लाते हैं। सारे लोग हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया। ये देख करके बहुत से लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में मुशर्रफ इस्लाम हो गए। आ गए लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन इब्राहीमी में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को छोड़ दिया। इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम वहां से चले। आपने हिजरत की मुल्क शाम की तरफ, बाबिल को छोड़ दिया और आप मुल्क शाम की तरफ हिजरत करते हैं। आपके साथ में आपकी बीबी हजरत सारा हैं और हजरत सारा को अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया था। हजरत सारा को अल्लाह ने वो खूबसूरती अता फरमाई थी। हजरत सारा के दौर में कोई भी उनसे ज्यादा हसीन और जमील नहीं था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला है वो हजरत सारा के हुस्न का एक हिस्सा है। हजरत सारा के हुस्न का एक हिस्सा है। जरा सोचो तो सही, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, जिसके हुस्न को देख करके मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, हजरत सारा के हुस्न का एक परतव है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। अल्लाह अकबर। हजरत सारा बड़ी हसीन और जमील थी और साथ में हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। अब ये बाबिल को छोड़ करके मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर रहे थे। रास्ते में मिस्र की सरजमीन पड़ती है। मिस्र की सरजमीन का जो बादशाह था वो बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। वो बादशाह ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर किसी लड़की की शादी होगी तो पहले उस लड़की को मेरे हरम में लाया जाएगा, फिर उसके बाद वो लड़की अपने शौहर के पास जाएगी। और उसके जगह जगह चौकीदार, उसके नुमाइंदे बैठे हुए थे। शहर के मुख्तलिफ कोनों पर उसने चौकीदार लगा दिए थे कि अगर कोई हसीन और जमील लड़की या औरत गुजरती हुई दिखे उसको मेरे महल में हाजिर किया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, छोटा सा काफिला है। हजरत सारा के चेहरे पर जब नजर पड़ी तो लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा को बादशाह के महल तक पहुंचा दिया। बादशाह ने जब हजरत सारा को देखा तो देख करके
कहने लगा कि इनको मेरे हरम में पहुंचा दिया जाए। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा बादशाह के हरम में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी बहन है, फिर भी बादशाह नहीं माना। आप नमाज शुक्राना पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हजरात गिरामी रब की इबादत कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नफल नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए पूरे महल को शीशे की मिसल कर दिया था। आप बाहर से अंदर का मंजर देख रहे थे। उस बादशाह ने जब गलत इरादे से हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शिल हो जाता है, उसका हाथ खराब हो जाता है, हाथ नहीं उठ पाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, वो घबरा जाता है और कहता है कि आप दुआ कर दो अल्लाह ताला से कि मेरा हाथ और मेरी आंखें ठीक हो जाएं। हजरत सारा ने दुआ की, उसका हाथ और उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो फिर यही गलत इरादे से हाथ आगे बढ़ाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म कर देता है और उसके हाथ को शिल कर देता है, हाथ बिल्कुल खराब हो जाता है। उसने फिर माफी मांगी। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर दुआ की। हजरत गिरामी उस बादशाह ने अपनी एक बांदी को हजरत सारा की खिदमत के लिए दिया था और कहा था हाँ अजरों के, ये तुम्हारे लिए एक अजर है, एक तोहफा है। उसी दिन से वो बांदी दी गई, इसलिए उनका नाम हाजरा पड़ गया था। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सारा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम छोटा सा काफिला लेकर के जब मिस्र से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आती है मुअतफिकात, वहां पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबूवत के मनसब से सरफराज फरमाता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लग जाती है। आप वहां पर खिदमत करते हैं, आप वहां पर रब की वहदानियत का ऐलान करते हैं, आप वहां पर रब की वहदानियत की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ चल देते हैं और जब आप अर्ज़ मुक़द्दस में पहुंचते हैं, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास में जब आप थे तब हजरत सारा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर मैं चाहती हूं कि आप हाजरा से निकाह कर लें। तो हजरत सारा के बतन मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत हाजरा से जब निकाह हो जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की। आप उम्र की आखिरी दहलीज पर थे, तब अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझको नेक बेटा अता फरमा दे। नेक बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो पता चला जब औलाद नेक होती है तो माँ बाप की इज्जत का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। औलाद जब नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इसलिए जब भी दुआ मांगा करो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के वसीले से दुआ मांगा करो, मौला हमें भी नेक औलाद अता फरमा, मौला हमें भी नेक बेटा अता फरमा। क्योंकि औलाद जब नेक होगी तो कुरान पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नमाज पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी पे दुरूद पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी की शरीयत की पाबंद होगी, औलाद जब नेक होगी तो मदीने वाले मुस्तफा की सच्ची गुलाम और वफादार होगी। औलाद जब नेक नहीं होगी तो वो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है, माँ बाप की बदनामी का जरिया बनती है और माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है औलाद की वजह से। हजरत गिरामी आज मैं आपको बताता हूँ नेक औलाद का क्या सिला मिलता है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्र की तरफ से होता है। आपने देखा कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। हजरत इस वाक़े को अल्लामा राजी अलैहि रहमान ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है। बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल में आप लिखते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के करीब से गुजरे, आपने देखा कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। आप कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाते हैं, उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनने वालों, आओ जरा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन,
सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। औलाद नेक होती है तो उसका फायदा क्या मिलता है? अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम जब वापस आए तो देखा कि उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, मौला तू तो दिलों के राज जानता है। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तू तो दिलों के राज से वाकिफ है। ऐ मेरे मौला इस कब्र के अंदर जब मैं गुजरा था तो अजाब हो रहा था, आज इसकी कब्र रहमत नूर की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र में अनवार की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, आज इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। ऐ मेरे मौला इसमें क्या